वेलकम टू द्रोणास ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आप लोगों को पता है जे हम लोगों ने मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर क्लासेस स्टार्ट किया है। तो पहले दिन हम लोगों ने अरबियन इन्वेशन से मामूद घोड़ का जो रीजन था फ्रॉम द 636 एडी टू दी 1200 सॉरी 1027 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है आफ्टर द मामूद Ghazni, the Mahmud Ghor come to the India, okay, and he established the vast empire in the not only in the India but also in the South Asia, okay, for the several centuries. So today we discussed about the reign of the Mahmud Ghori, okay. So as we know that the many historians assert the actual founder of the Empire, Islamic Empire in the India is the Mahmud Ghori. Okay, why he is called the actual founder of the Islamic Empire? Because जब मामूद ऑफ गजनी भारत में जब आया था तब उसने सिर्फ वेल्थ एक्युमुलेट किया था, ठीक है। कोई उसने एक कंसोलिडेट पावर और कंसोलिडेट एम्पायर उसने एस्टेब्लिश नहीं किया था। लेकिन मामूद घुरी जब भारत में आया था तो उसने तो वेल्थ को तो एक्युमुलेट किया ही था, साइमल्टेनियसली ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट or centralized administrations in India. Okay, for that reason, the historian assert him as the founder of the Islamic Empire in the India. So, what is his name? His name is the Sahibuddin. Okay, Sahibuddin Muhammad. So, his MD referred as the Muhammad. Okay, and he apart this he also known as the Moizuddin. Okay, also known as the Moizuddin Muhammad bin Sam. Okay. So this by this name he was known, uh, but he popularly known as the Mahmud Ghori. Okay. So his first name is the Sahibuddin Muhammad, also known as Muizuddin Muhammad bin Sam. Okay, but popularly known as the Mahmud Ghori. Okay, and his the reign is between the 1173 to the 1202. Okay, and last day I had discussed that C. The C denotes the Sirka. Okay, so Mahmud Ghori belonged to a dynasty named the Ghurid dynasty. Okay, named the Ghurid dynasty. Actually, they belong to the Ghor, and for this reason, their dynasty is known as the Ghurid dynasty, and they are also known as the Ghor. Okay, and as we know that he credited with the laying the foundation of the Muslim rule in India. No, but also he not only India but also in the South Asia. That is lasted for several years. As we know, he established the slave dynasty. Okay, and his slave name is the Kutubuddin Aibak. Established the slave dynasty, and the slave dynasty continued till the 1526. Okay, not only the 1526 before the Khaljis. Okay, the slave dynasty continued. Okay, the for that reasons the several the word mentioned the several centuries, and his kingdom includes the part of the modern part of the Afghanistan, also the Bangladesh, Iran, India, and the Pakistan. Okay, so for that reason, so the dynasty, so the here I discussed about the several dynasties of the Sultanate period. So first of all, the slave dynasty. Okay, after slave, Khalji. Okay, after Khalji, there are the Tughlaq. After Tughlaq, that is the Sayyid, and after Sayyid, there are the Lodi. Okay, so before the Khalji or the from the 1200 1200 to the 1200 approximately 90. Okay,
So these periods are belongs to the slave dynasty. Okay. So after that, so from where the Ghuris belongs and what is their religion? So towards the towards the middle of 12th century, this Turkish tribesman, okay, this Turkish tribesmen who were partly tribesmen who was partly, sorry, the line is totally, the Turkish tribesmen, not this, the the tribesmen who were partly Buddhist shattered the power of Seljuk Turks. So who are the Seljuk Turks? The uh, the Turks belongs to Mahmud Ghazni. Okay, are Mahmud Ghazni are known as the Seljuk Turks. So the Ghurs are the mainly the Turkish tribes who were the partly Buddhist. Okay, and they were shattered the power of Seljuk Turks. Okay, and at first the Ghurid, so like the Mahmud Ghazni's family, the Ghuridar had started as the subordinate of the Ghazi, but soon they overpowered them. Okay, so and the power of the Ghurid increased under the Sultan Alauddin. Okay, Sultan Alauddin, we also said that Sultan Alauddin is the founder of the Ghurid dynasty, or was the first ruler of the Ghurid dynasty. Okay, so the power of increased there, the power of the Ghurid were increased under the Sultan Alauddin. Okay, who earned the title? What is his title? His title is the Jahan Soj, means the world burner. So why he known as the Jahan Soj? Because उसने क्या किया था, 7 दिन तक, ओके, 7 दिन तक उसने गजनी को जलाया था। ठीक है, पूरे गजनी को तहस नहस कर डाला। पूरा जो गजनी जो सिटी था उसको 7 दिन तक उसने जलाया। और एक जो उसने यूनिक काम किया था वो था, उसने जो गजनी के जो रूलर्स थे, उसके बाद जो रूलर्स थे महमूद गजनी के बाद, उसके जो उसके बाद जो उसके जो मतलब उसके वंश के जो बाकी वो थे, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसर्स थे, उनको उनके जो हड्डियां थी जो उसके कवर में से, उनको निकलवा के जलवा दिया। ठीक है, सिर्फ महमूद गजनी के जो कवर था उसको छोड़ के बाकी सबके जो उस महमूद गजनी के जितने भी सक्सेसर के कवर थे, ठीक है, उनको उनसे कवर से उनकी हड्डियों को निकालकर उसको जला डाला। और पूरे जो गजनी जो शहर था उसको भी जला डाला, इसलिए उसका नाम पड़ा जहां सोच। ठीक है, सो आफ्टर अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन के बाद तो कौन आया पावर में? अलाउद्दीन के बाद जो पावर में आया वो गियासुद्दीन। तो गियासुद्दीन का टाइम पीरियड क्या है? देखिए, गियासुद्दीन का टाइम पीरियड है 1163 एडी। ओके, so he was the ruler after the Alauddin, and after the Ghiyasuddin, his brother, what is the name of his brother? That is the Sihabuddin. Okay, Sihabuddin captured the Ghazni. In which year? It is the 1173 AD, and it is the Sihabuddin who is popularly known as the Mahmud of Ghori. Okay, so the time period of the Ghurid dynasty. Ghurid dynasty. First one is Alauddin. Second, Ghiyasuddin. Ghiyasuddin. 1163 AD. Okay. And after Ghiyasuddin, that is the Shihabuddin. Shihabuddin और महमूद घोरी। तो शिहाबुद्दीन ने 1173 को गजनी में अपना जो इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एस्टेब्लिश किया था। लेकिन ये बात बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने जो महमूद गोरी था वो अपने जो एल्डर जो उसका ब्रदर था गियासुद्दीन, उसको बहुत ही
उसको उसको बहुत ही उसका संग उसका रिश्ता बहुत ही अच्छा था, ठीक है। वो अपने भाई के ऑनर में खुतबा भी पढ़ाता था, ठीक है, खुतबा पढ़ता था, उसके नाम से कॉइन भी उसने मिंट करवाया था, ठीक है। तो अपने भाई के संग उसका बहुत ही अच्छा रिलेशन था। तो ये गया महमूद गौरी का जो डायनेस्टी है कैसे आया। उसका जो डायनेस्टी का फाउंडर है उनका नाम है अलाउद्दीन। और ये ध्यान में रखना जो घोरी, लेकिन घोरी जो डायनेस्टी है घोरी नाम का जो टर्किश ट्राइब्स है, वो लोग लेकिन बुद्धिस्ट थे, ठीक है। उनको इस्लाम में कन्वर्शन का, उनका जो इस्लाम में उनको कन्वर्शन करने का काम लेकिन गजनी के रूलर ने ही किया था। कौन? महमूद गजनी। सो उसने इसके बाद क्या किया था, ऐसे आफ्टर असेंडिंग इन थ्रोन he capturing the Khorasan, okay, and adopt the title Muizuddin, okay. एंड द फेमस एंड एज वी नो द जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में, कोई भी बड़े रूलर और कोई फेमस रूलर के बारे में पढ़ते हैं तब, लेकिन हम लोग ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, है ना। कैसे ऐसे भी कुछ भी बोल दिया उनके बारे में, ये लेकिन नहीं चलता हिस्ट्री में। तो जब भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों को सोर्सेस की जरूरत होती है। तो मैंने पहले दिन ही डिस्कशन कर दिया था, जो सोर्सेस दो टाइप के होते हैं हिस्ट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लिटरेरी सोर्सेज एंड अनदर इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो ये जो मोहम्मद घुरी का जो रेन था, उसने कितनी बार भारत में इन्वेट किया था, कितने बार भारत में उसने आया, कौन से राजा को उसमें उसने युद्ध में हराया था, ठीक है ना। तो ये सब बारे में हम कहाँ से जान पाएंगे? मेडिएवल के जो मशहूर हिस्टोरियन थे, क्या नाम है उनका? मिनहाजुद्दीन सिराज, ओके। उनके जो बुक, उनका जो बुक है, क्या नाम है उसका? तवाकत नसरी। So his name of his book is Tawakati Nasri, gave a detailed description about his reign. So this is the literary source of the history of Mahmud Ghor. Okay. So there was several differences between the Muhammad Ghori and the Mahmud Ghazni. Okay, so we discussed about it. So Ghori is a very ambitious ruler, as we know. Okay, and he was not satisfied with only the Ghazi, and he wanted to expand his empire. Okay, and get hold more control and the power. And at first, as we know, that he was very much well aware of the Indians political, religious, social weakness as well as the military weakness, and also about the enormous wealth that India had. Okay, the all things you know very well. So but unlike Mahmud Ghazni, Mahmud Ghori was very interested in establishing a permanent empire in India. So the main aim of the Mahmud Ghazni was looting and plundering or accumulation of the wealth. Okay, and he not interested in establishing a permanent empire in the India, but Mahmud Ghori is very much interested in establishing as permanent empire in India. So this is the basic differences between the aim of Mahmud Ghazni and Mahmud Ghori. So there are the three independent Muslim rulers are governed in the northwest frontier during the period of Mahmud Ghori. Okay, during the period of Mahmud Ghori, and he entered India through the Gomal Pass. So this is the very important questions through which passes the Mahmud Ghori entered to India. So this is the Gomal Pass. Okay. सो अभी जो हमने बात किया था ना, जे जब महमूद घोरी भारत में आया था तो तीन डायनेस्टीज थी, ठीक है। तो हम वो तीन डायनेस्टीज के मुस्लिम इंडिपेंडेंट जो डायनेस्टीज थी व पावर थे उनके बारे में बात कर लेंगे। तो पहले जो था वो कौन था? लाहौर में था पहले वाला, ठीक है। तो लाहौर में कौन था? खोसरू शाह। खोसरू शाह कौन था? खोसरू शाह लास्ट ruler of Ghaznavids.
ठीक है। उसके बाद कौन था, लाहौर के बाद देखो कौन था, मुल्तान। मुल्तान में कौन थे, उसके बाद था मुल्तान। देखो मुल्तान में कौन थे, करामती। ओके, करामती रूलर। और मुल्तान के बाद हम लोग चले जाएंगे सिंध में। ठीक है, वहां था सुमरा रूलर। ठीक है, सुमरा रूलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जब महमूद गनी इंडिया में एंटर किए थे, जब महमूद गनी इंडिया में आए थे, तो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है, जिसको अभी हम लोग जब पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर में जो एरिया है, उस टाइम पे वहां 3 इंडिपेंडेंट मुस्लिम गवर्नर थे। कौन कौन थे, पहले थे लाहौर में थे। लाहौर में कौन थे, खुसरू शाह। खुसरू शाह कौन थे, वो गजनवीज के लास्ट रूलर थे इन लाहौर। ओके, आफ्टर दैट द मुल्तान, द हु रूल in Multan, that is the Karamathi Muslim rulers. Okay, and in the seas it is there is a Sumer ruler. Okay, understand? So in India, the first expeditions of the Mahmud Ghori was against the Multan. Okay, against the Multan, which has largely which is largely successful. Okay, and in which year, that is the 1175. So in the year of the 1175 AD, he had laid his first expedition against the Multan, and in this campaign he had largely successful. And in the same campaign, okay, and in the same campaign he captured the Uch. Okay, the area of Uch, from whom, from the Rajput. ठीक है, and 3 years later, that means after 1175, that is the 1178 CE, again marched to conquer Gujarat. As we know, the Gujarat is a very much important part of the India during that time, and for that reason, in the year of the 1178 CE, he marched to conquer Gujarat. But the Chalukya ruler, we know the Chalukya are the very strong and the powerful rulers. Chalukya rulers, name the Chalukya rulers, that is the Bhima II, defeated him in the battle of Kayadara. Okay, and where is the battle fought? The battle is the fought near the Mount Abu. Okay, so as we know, the Bhima I is the ruler during the period of Mahmud Ghazni, and the Bhima I repaired the Somnath temple first time. Okay, and after the Bhima I, the Bhima II is the ruler of the Chanakya ruler. Okay, Chalukya ruler in Gujarat, and during that time the Mahmud Ghor attacked on the Gujarat, and but he defeated at the battle of Kayadara. Okay, so his first expedition in India in 1175 against the Multan, and second against the Chalukya ruler 1178. Okay, so and after thus he launched a campaign against whom? Against the Ghaznavid position in Punjab. Okay, Punjab. The last ruler of the Ghazni was Khosrow Shah. I have already discussed about the Khosrow Shah. He is the ruler of the where? He is the ruler of Lahore. Okay, and also the last Ghaznavid ruler. Okay, so after the Gujarat, he launched his campaign against the Ghaznavid position in Punjab. Okay, and the ruler of the Ghazni was during that time is Khosrow Shah. Okay, and as a result, he also conquered the Peshawar in the 1179. Okay, and Sindh in 1182, and Punjab and the Lahore. During that time, he received the help of विजयदेवा ऑफ जम्बू. सो सिंध को उसने ऑक्युपाइड किया था 1182 में, और सिंध के पास उसने पंजाब और लाहौर को अपना टारगेट बनाया था, जैसे हमको पता है. तो वो जब महमूद गोरी जब लाहौर और पंजाब में गया था, कॉन्क्यूरिंग लाहौर और पंजाब में गया था,
दोनों को ऑक्युपाइड करने के लिए। तब उसको किसने हेल्प किया था? उसको हेल्प किया था जो जम्मू का जो किंग था, उसका नाम क्या है? विजय देवा। ठीक है, विजय देवा ने उसको हेल्प किया था। तो ऐसे हम लोग जैसे पता है, जो उसने पहले पंजाब गया, वहां को खुसरो शाह को हराया, उसके बाद उसने पेशेवर जीता 1179। 79 के बाद देखो 1182 में 1179 में उसने पेशवार को जीता, उसके बाद 1182 में उसने सिंध को जीता, उसके ठीक है, और उसके बाद पंजाब और लाहौर को भी उसने जीता। और जिस टाइम उसने पंजाब और लाहौर गया था ऑक्युपाइड करने के लिए, उसको किसने हेल्प किया था? जम्मू के जो किंग थे विजय देवा, उसने हेल्प किया था। ठीक है, और आफ्टर द कंक्वेरिंग पंजाब एंड लाहौर, he had given the administration responsibility of these areas on his governor। ठीक है, तो महमूद घोरी का ये एक मतलब यूनिक टेक्नोलॉजी, यूनिक कैरेक्टर है, बाय यूनिक यूनिक पॉलिसीज है, जो जब भी वो कोई एरिया को ऑक्युपाइड करता था और उसको आगे बढ़ना होता था, तो वहां पर वो अपने एक गवर्नर को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, वही एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपने गवर्नर को सौंपने के बाद ही वो आगे बढ़ता था। तो इससे उसके जो पहले जो एरिया उसने जीता था, उसमें भी उसका जो पावर है कंसोलिडेट रहता था। तो धीरे धीरे ऐसे ही उसने जीतता गया, गवर्नर रखते गया, पावर कंसोलिडेट करते गया, ऐसे ही करते करते उसने इंडिया में घोर डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। सो अब घोरी का पोजीशन, घोरी ने अब क्या किया? मोहम्मद घोरी ने पंजाब को भी अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो जब उसने पंजाब के अपने अंडर में ले लिया, देन ही इज अटेम्प्ट टू एडवांस इनटू द गांगेटिक दोआब, okay, and brought it, sorry, not him, this is the it, direct under, sorry, this is not, this correct, and his attempt to advance into the Gangetic Doab brought him into the direct conflict with the Rajput ruler. Okay, and we know the Rajput name of the Rajput ruler, the very important and very interesting or very famous character of Indian history, that is the Prithviraj Chauhan. Okay, so the conflict between the Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan started with the claim of Tahar Hind. ओके, कॉन्फ्लिक्ट विद द तवरीन, जिसको अब हम लोग किस नाम से जानते हैं? भतिंदा। तो ये लेकिन मेन कॉज था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, क्योंकि जब महमूद गोरी ने पंजाब जीत लिया, सिंध जीत लिया, ठीक है, लाहौर जीत लिया, तब उसने क्या बोला? तब उसने गांगेटिक दोआब की तरह वो आगे बढ़ने लगा। ठीक है, और तभी उसके संग राजपूत रूलर के कॉन्फ्लिक्ट, राजपूत रूलर लोगों के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन जो राजपूत किंग थे पृथ्वीराज चौहान, उसके संग महमूद घोरी का जो विवाद था और कॉन्फ्लिक्ट था, उसका मूल जो कारण था, उसका मूल कारण ही यही था, जे महमूद गजनी, महमूद और घोरी भटिंडा में बोल रहा था, भटिंडा मेरे एरिया में आता है, और पृथ्वीराज चौहान का ये मानना था कि भटिंडा पृथ्वीराज चौहान के टेरिटोरी के अंदर आता है। तो भटिंडा के क्लेम को लेकर ही दोनों में फर्स्ट जो वार हुआ था, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वी नो, ईच एंड एवरीवन नोन द बैटल इज द नोन एज द तराइन। Okay, so what is the name of the battle? So the battle name is the first battle of the Tarain, and the date is the very much important, that is the 1191 AD. Okay, so where is the Tarain located now? The Tarain is a place near the Karnal in the present Haryana. Okay, so and the Mahmud Ghori was the defeated by Prithviraj Chauhan. Okay, in the first battle of the Tarain, the Mahmud Ghori was defeated by Prithviraj Chauhan. तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चलता है जे महमूद घोरी इंडिया में 2 बार हारा था, है ना, डिफीटेड ट्वाइस। ओके, फर्स्ट किससे डिफीट हुआ था? फर्स्ट हुआ था चालुक्य रूलर भीमाचू इन गुजरात, और सेकेंड टाइम हुआ था पृथ्वीराज चौहान बाय द राजपूता रूलर पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ तराइन। ओके,
सो आफ्टर 1 year सेकेंड बैटल ऑफ 1 साल के बाद लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था. सेकेंड बैटल ऑफ तराइन फॉट बिटवीन द मोहम्मद गोरी एंड द पृथ्वीराज चौहान. तो जब फर्स्ट बैटल हुआ था ना, तब उसके बाद महमूद गोरी अपने देश को लौट गया था. ठीक है. तो वो पे जब फर्स्ट बैटल तराइन हुआ था, तब उसमें जब मोहम्मद गोरी हारा था, तो उसका हालत बहुत ही खराब था. जस्ट मरने लायक था वो, लेकिन मरने ही वाला था, लेकिन तब पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया था. ठीक है. तो उसके बाद महमूद गौरी फिर अपने देश गया. वहां जाके उसने अपना पावर को और इंक्रीज किया. ठीक है. लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने अब आफ्टर द बैटल ऑफ तराइन उन्होंने अपना पावर को कंसोलिडेट करने का कोई कोशिश नहीं किया. ठीक है. या अपना जो आर्मी था उसको एडवांस करने का भी कोई कोशिश उन्होंने नहीं किया. ठीक है. तो इसके वजह से जब दोबारा से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, तब लेकिन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी से हार गए थे. ठीक है. और दिस बैटल इज रिगार्डेड एंड ऑल्सो दिस बैटल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. Why? Because the Prithviraj Chauhan was defeated and Ghori emerged successful. Okay, and Ghori emerged successful, and for that reasons that the Muslim empire or the slave dynasty or the Muslim Muslim rule started in India. Okay, so what is the reason behind the defeat of Prithviraj Chauhan? First of all, his army, the bulky Indian forces. Okay, no match against the superior organization. Okay, skill and speed of Turkish cavalry. Okay, so the Indians, most of the Indians are use the elephant. Okay, and the Turkish people are use the use the horse. Okay, so हाथी जो है वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है. ज्यादा हमको जैसे पता है जो उसका जो मूवमेंट है बहुत ही स्लो है, और घोड़ा क्या है बहुत ही जल्दी कहीं पर भी चले जाएगा, है ना, फुर्तीला होता है. तो इसके वजह से उनके जो कैवलरी थे, तो टर्किश जो कैवलरी थी बहुत ही एडवांस थी. ठीक है. और उनके पास ऐसे ऐसे कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज उन्होंने इन्वेंटेड किया, और नए नए कुछ उनके पास लेकिन अस्त्र भी थे. ठीक है. जिनसे उन्होंने काम चला किया था. ओके, जिनसे उन्होंने ये जो राजपूत की जो आर्मी थी उनको लेकिन डिफीट किया था. ठीक है. तो उन टर्किश के जो वेपन थे बहुत ही एडवांस थे देन द इंडियन आर्मी. ओके. तो पृथ्वीराज एस्केप्ड. पृथ्वीराज ने भागने की कोशिश की, बट ही एस्केप 1 minute. But he got captured. Where he captured? He captured near the Saraswati. The Saraswati here is not a river. Saraswati is a place, and where the Saraswati now located? It is the Sirsa in the Bihar. So never misguided that the Saraswati is a river. No, Saraswati here is a place. Okay, and after that he allowed the rule. एंड देन जब पृथ्वीराज को ऐसे पकड़ा गया सरस्वती के पास, तब उसको थोड़ी दिन के लिए अजमेर का फिर से उसको दे दिया गया. अजमेर एज अ रूलर उसको दे दिया गया कि तुम कुछ दिन तक यहाँ से अपना शासन चला सकते हो. तो इस बात का हमको कैसे पता चलता है? ठीक है. कैसे पता चलता है? पृथ्वीराज ने कुछ कॉइन मिले हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पृथ्वीराज. ओके, द कॉइन्स पर्टेनिंग टू दिस बियर. व्हाट इज बियर? दैट इज द पृथ्वीराज देवा. Okay, Prithviraj Deva on one side and the word Sri Muhammad Sam on the other side. So these coins are belongs to the Prithviraj Chauhan, and this coins bears the name of Prithviraja Deva in one side, in the other side the word Sri Muhammad Sam. From this coins, from this coin it is proved that the Prithviraja Chauhan ruled in Ajmer under the Muhammad Ghori for some times. So after that, in the 1994, Ghori defeated the Jaichand, and Jaichand is the ruler of the Kannauj, and which dynasty belongs to the Gaharwal dynasties. Okay,
So the battle between them is popularly known as the Chanderi, Battle of the Chanderi. एंड जयचंद ने क्या किया था, जब पृथ्वीराज चौहान सभी राजपूतों से मदद मांग रहे थे, जे हम सब कोई एक संग मिलकर मोहम्मद घोरी का सामना करेंगे, तब लेकिन जयचंद ने नकार दिया था। उसने लेकिन पृथ्वीराज चौहान के जो संघ थे, राजपूत के जो संघ थे, उसमें लेकिन नहीं गया वो, ठीक है, उनको हेल्प नहीं किया। यहाँ तक कि उसने एज ए स्पाई काम किया था मोहम्मद घोरी के लिए। तो जब पृथ्वीराज चौहान का जब डेथ हुआ, उसके बाद 1194 में लेकिन जयचंद के संग ही लेकिन मोहम्मद गोरी का एक फाइट हुआ और एक बैटल हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी क्यों? क्योंकि चंदेरी के पास ये बैटल हुआ था। चंदेरी एक जगह है, एक प्लेस है, इसलिए इसका नाम है बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है। So after this invention, Qutbuddin Aibak was made the viceroy of the मोहम्मद गोरी। तो अभी से हम लोग मोहम्मद गोरी का नाम पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन आइबक का नाम पढ़ेंगे। कौन था ये कुतुबुद्दीन आइबक? कुतुबुद्दीन आइबक था मोहम्मद गोरी का स्लेव्स। तो लाइक द कुतुबुद्दीन आइबक, मोहम्मद गोरी हैज सेवरल अदर स्लेव्स। ओके, तो आपको मैं ये एक बात आपको थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ, जो मोहम्मद घोरी के लेकिन कोई और मतलब कोई संतान नहीं थी। ठीक है, उनके कोई उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो वो जो उनके जो स्लेव्स थे, उनके बहुत सारे स्लेव्स थे, ठीक है, वो स्लेव्स को ही अपना लड़का, अपना संतान, अपना उत्तराधिकारी मानते थे। ठीक है। जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के आगे भी उन्होंने यही बोला, जो मेरे जितने भी स्लेव है, मेरे जितने भी मेरे दास है, वे ही मेरे पुत्र है, वही मेरे लड़का है, मतलब मेरे बच्चे हैं। ठीक है, मैं मरने के बाद वही मेरे डायनेस्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो आफ्टर द बैटल ऑफ चंदेरी, तो मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन आइबक को अपने ये जो एरिया था पूरा, वहां का गवर्नर बनाया। ठीक है। तो इसके बाद मोहम्मद घोरी फिर से इंडिया आया और जितने भी प्रदेश उसने जीते थे, लगभग हर किसी को कुतुबुद्दीन आइबक के अंडर में उसने दे दिया था। उसके बाकी कुतुबुद्दीन आइबक के छोड़ के भी उसके और अलग अलग स्लेव थे, जिसको उन्हें अलग अलग प्रदेशों के गवर्नर बनाए थे। ठीक है। सो इसके बाद आफ्टर 1994 कुतुबुद्दीन आइबक मोहम्मद घोरी एक बार फिर भारत में आया था। किस लिए आया था? देखो, टू क्रश द रिवोल्ट ऑफ खोखोर्स। ठीक है। एंड खोकोर्स का जो इलाका था, कहाँ था? बिटवीन द रिवर चेनाब एंड झिलम। ओके, तो द झिलम, स्पेलिंग ऑफ द झिलम इज नॉट करेक्ट, द झिलम स्पेलिंग इज GHELUM। ओके। एंड जब उन्होंने खोखोरों के रिवोल्ट को सप्रेस किया था, क्रश कर रहे थे, तब किसने एक्सीलेंट ब्रेवरी शो किया था? ड्यूरिंग दैट पीरियड द इल्तुतमिश, the another famous ruler of the slave dynasty, showed the excellent bravery, okay, during that time. And for that reason Muhammad Ghori ordered Aibak, what is the relationships between the Aibak and Iltutmish? Iltutmish is the slave of Aibak, okay, and Aibak is the slave of the Muhammad Ghori, okay, to free him from the slavery because of his bravery. एंड घोड़ी वॉज किल्ड बाय समवन। एंड ऐसे बोला जाता है, जब घोड़ी एक शाम को जब उसने नमाज नमाज पढ़ने के लिए बैठा, प्रेयर करने के लिए बैठा, तब किसी ने आकर उसके शिविर में, जो शिविर उसने डाल रखा था, उन लोग का जो टेंट है, उन लोग का जो टुकड़ी है, वो कहाँ पर था? रिवर चेनाब और जिलाम के बीच में। क्योंकि वो लोग मोहम्मद घोरी आया था खोखर का रिवोल्ट को क्रश करने के लिए। तब उसी टाइम पे जिलाम नदी के किनारे वो अपने जो ताबू, जिसको हम लोग ताबू बोलते हैं, या उसके अपने डेरा में जब वो नमाज अदा कर रहा था, तभी लेकिन किसी ने आके उसको मार डाला। ठीक है, तो किसी ने उसको मारा, कैसे उसको डेथ हुआ ये पता नहीं, लेकिन ये पता है कि किसी ने उसको आके उसका मर्डर किया था। ठीक है। द रेन ऑफ इंडिया passed on, and after that the reign of the India passed to the Aibak, and he laid the foundation of the slave dynasty of the foundation। तो क्यों स्लेव है? क्यों? क्योंकि ये डायनेस्टी जिसने एस्टेब्लिश किया था, आइबक, आइबक किसका स्लेव था? 1 मिनट। आइबक किसका स्लेव था? लुक एट हियर।
look on the page that आइबक किसका स्लेव था? आइबक स्लेव था मोहम्मद घूर, ओके। और आइबक का स्लेव कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था किसका स्लेव? स्लेव ऑफ आइबक, ओके। तो ये एक खूब इंटरेस्टिंग मैटर ये है कि जे इल्तुतमिश इकलौता ऐसा स्लेव था जिसको अपने मालिक के पहले ही क्या मिल गया था? मुक्ति मिल गया था, दासत्व से मुक्ति मिल गया था। क्योंकि जब हमने पढ़ा है, जब खक्कर का रिवल चल रहा था, तब इल्तुतमिश ने इतने अच्छे से उस विद्रोह को विद्रोह को क्रश किया था और विद्रोह को खत्म किया था। जे उसको देखकर मोहम्मद घोरी बहुत खुश हुआ और आइबक को परमिशन दिया कि तुम इल्तुतमिश को अपने दासत्व से मुक्त कर दो, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मतलब इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग थिंग है जी, इतिहास का एक ऐसा स्लेव जो अपने मालिक से पहले दासत्व से मुक्त हो गया था, ठीक है। और आइबक ने लेकिन जब गुजरात में, और आइबक ने कहां से खरीदा था इल्तुतमिश को? आइबक ने गुजरात से खरीदा था, ठीक है। कहां से खरीदा? गुजरात में। जब वो गुजरात में अहिलवाड़ा में जब लूट चला रहा था, लूट करने के लिए गया था, उसको अपने उसके गुर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में लाने की जब कोशिश करने के लिए गुजरात गया, तो वहां पर उसने अहिलवाड़ा नामक जो जगह है गुजरात के अंडर में, उसको लूटा। और लूटने के बाद वहां से जो उसको वेल्थ मिला, उस वेल्थ से उसने, उस पैसे से उसने इल्तुतमिश को खरीदा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जी ये जो डायनेस्टी है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एस्टेब्लिश किया था, इसको स्लेव डायनेस्टी और दास वंश के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि दास ने ही इसको मोहम्मद घुरी के जो दास थे उसने ही इसको एस्टेब्लिश किया था, इसलिए हिस्ट्रियन ने इनका नाम क्या दिया था? दास डायनेस्टी, ओके। एंड आफ्टर दैट मोहम्मद घुरी एंड, तो यहाँ तक था मोहम्मद घुरी ने कैसे इंडिया में आया, कैसे उसने ऑक्युपाइड किया, ठीक है, कौन सी जगह उसने ऑक्युपाइड किए, कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन को उसने एस्टेब्लिश किया था। तो इसके बाद अपार्ट दिस द मोहम्मद घुरी आल्सो इंट्रोड्यूस द न्यू टाइप ऑफ कॉइन। New type of the coin, like the Mahmud of Ghazni introduced the Deliwala coins, and the Mahmud Ghori introduced a special type of coin with the picture of the Lakshmi and the Nandi. And as we know, the Lakshmi and Nandi are the Hindu goddess. Okay, Hindu Lakshmi is the goddess and Nandi is the god. So he was the first Muslim ruler in India who also introduced the Ikta. Most of the time we know that the Iltutmish introduced the Ikta system, but Ikta system firstly introduced in India by the Mahmud Ghori. So if you don't have the option Mahmud Ghori, you should always go with the option of the Iltutmish. So after that, after the death of the Mahmud Ghori, his slave Qutbuddin Aibak consolidated his power over the Indian territory. So for that reason, the historians say it that the Mahmud Ghori laid the foundation of the permanent establishment of Turkish Sultanate. So when we compare the Mahmud Ghori with the Mahmud of Ghazni, so there were some differences between them. What are they? So as a warrior, okay, as a warrior, if we discuss, if we make some, if we assessed the character of the Mahmud of Ghazni and the Mahmud of Ghor, then we said that the Mahmud Ghazni was the more successful, okay, and she never suffered defeat in the India, okay. But Mahmud Ghori suffered defeat in India. First of all, he was defeated by the Bhima II, the Chalukya ruler, and the second time he was defeated by the Prithviraj Chauhan in the Battle of Tarain. But in India, Mahmud Ghazi never suffered the defeat, okay. So this is the basic differences between the Mahmud Ghori and the Mahmud Ghaznis, okay. As a warrior, Mahmud Ghazni is the more successful, but as a political
why as the but in the according to the political perspectives, or in the political perspectives, the Mahmud Ghori is the more successful than the Mahmud Ghazni. Okay, so today is the that much for the today. Next day we discuss about the Kutubuddin Aiworks and the Iltutmish. Okay, thank you.